Hello everyone. Welcome back to our initiative Legally Saral. First of all, thanks to all for the feedback you have given to the last presentations we have made, and some recommendations were made where we were asked to explain the provisions in Hindi and English. So in this presentation, we will be trying to explain the provisions in Hindi as well as English, so that all our viewers can easily understand the provisions. So, today the topic is on GST. The subject is ITC, commonly known as Input Tax Credit, which is now known as the heart of the GST. One who need to understand the GST or who want to do a business having a taxable supplies in GST need to understand this provision. So let's move ahead. So, friends, in common parlance, ITC means that the tax that you pay to your supplier at the time of purchasing goods. So, the scheme of GST is such that you are entitled under section 16 of the act, which we will discuss a bit later in this video. You at the time of making purchase pay tax, and when you make sales you collect tax. In simple terms, जब आप सामान खरीदते हैं तो उस टाइम जो आप अपने सप्लायर को टैक्स की पेमेंट करते हैं, और जब आप सामान को सेल करते हैं, उस परचेज गुड्स को सेल करते हैं, तो जो आप टैक्स की पेमेंट कलेक्ट करते हैं, उन दोनों का डिफरेंस आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है. नाउ इन ऑर्डर टू बी एंटाइटल्ड टू अवेल दिस क्रेडिट, वी नीड टू अंडरस्टैंड सेक्शन 16, which is very important for being entitled as well as being righteous in availing that credit. So that will be explained by my learned friend. So let's start with section 16. This is, as I already explained, this is the core heart of the GST. अगर आपको GST में ठीक से बिजनेस करना है, जिससे कि डिपार्टमेंट से आपको कोई नोटिस फेस ना करना पड़े, और अगर आप फेस करते हैं तो आपके पास प्रिकॉशनरी मेजर्स अवेलेबल हों अपने आप को डिफेंड करने के लिए, उसके लिए सेक्शन 16 की कंडीशंस आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंडीशन. सेक्शन 16 सब सेक्शन 1. ये सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 आपको राइट देता है, यू आर एलिजिबल टू टेक द input tax credit on all the supply of goods and services where the goods or services are used for business or furtherance of business. सिंपल टर्म्स में अगर इस सेक्शन को समझाएं तो ये सेक्शन जो GST एक्ट लेकर आया है वो सिर्फ आपको ये कहना चाहता है कि यू आर एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट ऑफ ऑल योर परचेजेस. आपको जो भी आप सामान खरीद रहे हैं, गुड्स या कोई सर्विसेज प्रोक्योर कर रहे हैं किसी से, अपने सप्लायर से, तो जो भी GST वो आपसे चार्ज करेगा आपको उसका क्रेडिट मिलेगा. लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या है कि दैट शुड बी यूज फॉर बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. इसका मतलब आपने एक मोबाइल खरीदा अपने पर्सनल यूज के लिए, या घर के लिए कोई फर्नीचर खरीदा पर्सनल यूज के लिए, टीवी खरीदा पर्सनल यूज के लिए, जिसका बिजनेस में कोई भी यूज नहीं होना, ना आप उसको बिजनेस में यूज करेंगे अपनी एक्टिविटी करने के लिए, और ना ही आप उसको आगे सेल करेंगे, तो वो यूज फॉर बिजनेस और फर्दर बिजनेस नहीं माना जाएगा, और आप उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. एक ये जनरल क्लॉज, पहला क्लॉज जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 का GST में बताया गया है. क्लॉज जितने भी ये सारे क्लॉजेज हैं उसमें बहुत इन डेप्थ सेक्शन को कोट किया है GST डिपार्टमेंट ने, बट जो हमारा पर्पस था इस चैनल को लॉन्च करने का वो यही था कि हम सिंपली वे में आपको प्रोविजंस को समझाएं एज अ कॉमन मैन. सो हमने उसको पॉइंटर्स में हाईलाइट किया है. व्हाट few precautions you have to take and what precautions you have to ensure to flow the proper tax credit to your supply. And just to add here for a moment, now when we are discussing section 16 subsection 1, it is very important to understand that this is an enabling provision. What I mean by that is, this section enables you to avail credit of tax that you pay on the goods that you receive, and that goods that you receive must be used for business or in furtherance of your business. So kindly mark those words. That goods should either be used in your business or in furtherance of your business. Now moving ahead, my friend will explain to you section 16 too.
Now, as I already explained in 16.1, but the Act says nothing notwithstanding anything contained in section 16.1. इसका मतलब ये होता है कि whatever 16.1 में हमने डिस्कस किया, जो आपको बताया, वो कंडीशंस प्रिवेल नहीं करेंगी जब तक आप फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेंगे. जो भी बताया गया आपको 16.1 में कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल हैं अगर आप बिजनेस के लिए या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए कोई भी गुड सर्विसेज को यूटिलाइज करते हैं, बट वो कंडीशंस एक आपको जनरल क्रेडिट अलाउ नहीं करेंगी सब्जेक्ट टू दी फॉलोइंग कंडीशंस. वो कंडीशंस क्या हैं? एक बायर को क्या ध्यान में रखना है किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल दे से यू मस्ट हैव एन इनवॉइस और अ डॉक्यूमेंट एज पर सेक्शन 31. आपके पास पहली बात है कि आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि मैंने ये सामान या ये सर्विस मैंने किसी से प्रोक्योर करी है या खरीदी है. सेकंड, जो आपने सामान खरीदा, जिससे आपने खरीदा, whosoever a supplier is, he must file his return in GSTR 1. वो अपनी सप्लाई की रिटर्न्स को GSTR 1 में फाइल करेगा. थर्ड, उसके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास गुड्स और सर्विसेज रिसीव हुई हैं. ऐसा नहीं है कि आपने खाली एक इनवॉइस ले लिया और सप्लायर ने रिटर्न फाइल कर दी, तो वो आपको रिलीव नहीं करता है सारे प्रिकॉशन से कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा. देन देयर इज अ कंडीशन दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अ रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट अंडर सेक्शन 38. इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको और हाईलाइट किया हुआ है कि आप कोई कंपोजिट डीलर नहीं होने चाहिए, आप नॉन रेजिडेंट नहीं होने चाहिए, आप OIDAR सर्विस में प्रोवाइडर नहीं होने चाहिए. कंपोजिशन डीलर कौन होता है? कुछ स्मॉल स्केल सप्लायर्स को गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि आप अपनी, अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख से कम है तो आप 1% टैक्स पे कर दें, अगर आप फूड रेस्टोरेंट सर्विस में है तो 5% टैक्स पे कर दें. तो उनके वो जो सप्लाई करेंगे उस केस में रिसीवर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. देन सप्लायर हैव पेड देयर टैक्स टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. अब आपने जिससे इनवॉइस लिया, उन्होंने रिटर्न भर दी, आपको गुड्स दे दिए, बट उन्होंने टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा नहीं करवाया, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. एंड लास्ट, द रिटर्न हैज नॉट बीन फाइल्ड बाय यू. आप रिसीवर हैं और आप ही ने रिटर्न अपनी फाइल नहीं करी है, तो आप उस टैक्स के क्रेडिट को अवेल करने की पोजीशन पे नहीं है. Now, if you can highlight the provisions again for easy understanding. Yes. So the first provision as discussed by my friend is that you should have a valid invoice. आपके पास valid invoice होना चाहिए. Valid invoice के साथ साथ उस invoice की डिटेल आपके सप्लायर ने अपनी GSTR 1 में फर्निश करनी है टाइम टू टाइम. अगर टाइम टू टाइम नहीं हो पाती ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू अ वैलिड रीज़न, तो हमें एक्ट ने ये बोला है कि आपके सप्लायर के पास 30 नवंबर तक का टाइम है उस डिटेल को फर्निश करने का अपनी GSTR 1 में. Now there might be some people who may not be well versed with what GSTR 1 is. So for them there are two returns in GST scheme, prominent two returns, that is GSTR 1 and GSTR 3B. GSTR 1 में आपकी सेल की डिटेल जाती है. जो भी आप गुड्स सेल करते हैं उसकी डिटेल आप GSTR 1 में फर्निश करते हैं, चाहे वो बिजनेस टू बिजनेस हो या बिजनेस टू कंज्यूमर हो. 3B में आपकी समरी जाती है सेल की और परचेज की. जो आपने सेल की उस पर आपने कितना टैक्स कलेक्ट किया, और जो आपने परचेज पे टैक्स पे किया अपने सप्लायर को, उसकी कंसोलिडेटेड डिटेल जाती है. नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट यू मस्ट हैव रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज और बोथ. हियर आई शैल पॉइंट आउट, जहाँ पे आपको गुड्स लॉट में रिसीव होते हैं, वहाँ पे अपॉन द रिसीट ऑफ लास्ट लॉट ये मान लिया जाएगा कि यू हैव रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ. नाउ next point does not need much consideration. It just says that your input tax shall not be restricted under section 37. That is very well explained by my friend, that when you are composite dealer, non-resident, OIDAR, you will not be entitled to get, you will not be entitled to avail credit of input tax. So let's be clear on that. Now this is a very interesting point. Section 16 subsection 2 clause C tells that the supplier must have made the payment of taxes to the government. So there may be some of the cases where you as a purchaser would have paid tax to your supplier, but due to negligence of the supplier, that tax would have not been paid to the credit of the government. Now what can we do in such cases?
In such cases, the law is very clear, the position of government is very clear. You will not be allowed to avail ITC. Your ITC will be reversed along with interest and penalties. And this is very litigative in nature, because you can always say that it is not your fault. Why should, because of fault of a supplier, should you be punished? So that is a very tricky area to go in. But having said that, the government wants you as a recipient of goods that you should know your supplier. So knowing your supplier is a must. Next is receiver must have filed their returns. So you should have filed your GST or 3B within time. And if you are not able to file your return within time, then you have been provided this relief that you should be able to file your return within 30th November of the succeeding financial year. That is mentioned in 16.4, which my friend will discuss further. So as we have already discussed, we just briefing out again. As a receiver of the goods or services, आपको सिर्फ 5 कंडीशंस का ध्यान रखना है. आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, आपके पास गुड्स सर्विसेज रिसीव करने का प्रूफ होना चाहिए, आपके सप्लायर उस रिटर्न को फाइल कर दें अपने पोर्टल पे जीएसटी के कि उन्होंने आपको गुड्स सप्लाई करे हैं या सर्विसेज डिलीवर करी हैं. देन दे मस्ट पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट. उनको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, अदरवाइज आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. एंड यू हैव टू फाइल योर रिटर्न. आपको भी अपनी रिटर्न फाइल करनी है जिससे कि आपको उसका क्रेडिट अवेल करने का मौका मिले. इफ यू विल नॉट फाइल योर रिटर्न, गवर्नमेंट विल नॉट नो कि व्हाट सर्विसेज यू हैव टेकन और प्रोवाइडेड. फर्दर दैट, एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द डिपार्टमेंट, दैट इज फर्स्ट प्रोवाइजो कि इफ यू हैव नॉट मेड अ पेमेंट टू योर सप्लायर इन 180 days of the invoice, your ITC will be reversed. Now the question arises, how it will be done? आपने गुड्स खरीदे, लेट्स से 1 अक्टूबर को, आपने 31 मार्च तक उस गुड्स को पेमेंट नहीं करा उसके सप्लायर को आपने, तो आपके सेल्फ ऑब्लिगेशन के अंडर आपको उस ITC को रिवर्स करना है, which is very difficult to understand why the taxpayer will reverse the tax on self-assessed basis, but that is what the law is. Once your case will be selected for scrutiny, they will ask for the reversal of the ITC as well as the payment of interest, which is 1.5% per month. So overall, we have to be very cautious and very careful in terms of taking an ITC, input tax credit, because these matters are into litigations. बहुत बार हमसे clients, friends पूछते हैं कि what is our fault when we have collected that, when we have made the payment, we have taken the goods, हमने सारे compliance करे, how can we be assured कि supplier will pay the tax or not, and what remedies we have. But आपको first of all remedies तो आप litigate करेंगे हाई कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके, अपील्स में जाके, बट आपको इनिशियली लॉ को समझ के उसका कंप्लायंस करना है. लेट द बायर बी अवेयर कॉन्सेप्ट से इस सेक्शन को ड्राफ्ट किया गया कि यू शुड नो हु इज द बायर एंड यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ योर बायर, अदरवाइज डोंट डू बिजनेस विद दोस डिफॉल्टिंग पर्सन्स. नेक्स्ट द प्रोविजन इज सेक्शन 16(3). ये बहुत सिंपल प्रोविजन है, किसी को इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर टेलिंग. सपोज आपने कोई मोबाइल खरीदा 1 लाख रुपीज़ का, उस पर 18,000 आपने GST पे करा, तो आपको इनवॉइस मिला 1,18,000 का. नाउ व्हेन यू आर बुकिंग एन एक्सपेंस एज एन फिक्स एसेट ऑफ मोबाइल, यू आर शोइंग इन अ बैलेंस शीट इज अ फिक्स्ड एसेट. आपको पता है कि फिक्स एसेट में हमें डेप्रिसिएशन मिलता है, तो गवर्नमेंट सिर्फ ये बोलना चाहती है इस क्लॉज से कि आप 18,000 का जो GST वाला पोर्शन है, you will not take the depreciation on 18,000 rupees. You will only claim depreciation of 1 lakh rupees. If you claim a depreciation on 18,000 as well, तो आपको वो 18,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा. You are ineligible to take the credit. This provision will further be elaborated in section 17, जब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ उस प्रोविजन को डिस्कस करेंगे. Now, my friend will go for 16(4). So 16(4) is nothing, as I explained it earlier, that you have to claim ITC in your return 3B
Now the due date of filing form 3B is 20th or 24th for some cases. In some state it is 22 and 23. So there is a set date for you to file your 3B in which you will avail ITC. जब आप 3B फाइल करेंगे तो उसमें आप बताएंगे कि ये मेरा ITC है और इसको मैं अवेल कर रहा हूँ. But what happens in those cases where you could not, where due to some valid reason or some other reason you could not file your return 3B within the due date? What happens in those cases? So don't be in a worry. Section 16(4) has got you covered, but only up to the period of 30th November. So अगर आप आज फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कुछ परचेज कर रहे हैं और आप अपनी 3B में वो चीज़ शो नहीं कर पाए, तो आपके पास 30th नवंबर 2024 तक का टाइम है उसको शो करने का. इन केस ऑफ फेलियर, अगर आप उस टाइम तक भी शो नहीं कर पाए तो आपको वो ITC की अवेलमेंट नहीं मिलेगी. यू वोंट बी एंटाइटल्ड टू गेट दैट ITC. सो मूविंग फर्दर टू नेक्स्ट स्लाइड, देयर आर सम इम्पोर्टेंट रूल्स. Rule 36, as we will link it with one of the conditions in section 16 that you should have a valid invoice. एक कंडीशन ये थी अवेलमेंट ऑफ ITC में कि आपके पास एक वैलिड इनवॉइस होना चाहिए. नाउ रूल 36 strengthens that और complements that. रूल 36 ये कहता है कि वैलिड इनवॉइस कैसा होना चाहिए. तो ये हमने आपके सामने एक परफॉर्मा पेस्ट किया है यहाँ पे. इसके अंदर आप देखिए, ये जो टैक्स इनवॉइस है, आपके जो सप्लायर हैं उनका नेम, उनका GST, उनका पैन नंबर, एड्रेस, प्लेस ऑफ सप्लाई, आप जो कि गुड्स रिसीव कर रहे हैं, आपका नाम, आपका GST नंबर, पैन, HSN कोड, क्या गुड्स परचेज कर रहे हैं वो क्या HSN कोड है उन गुड्स का, कौन से साल में परचेज हो रहा है, कितनी टैक्सेबल वैल्यू है, क्या उसके ऊपर टैक्स है, टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या है, और पेमेंट कौन से बैंकिंग चैनल से दी जाएगी. ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दी सेक्शन टॉक्स अबाउट दैट यू शुड हैव इन योर पोजेशन अ वैलिड टैक्स इनवॉइस. टैक्स इनवॉइस का मतलब ये नहीं कि आपके पास एक नॉर्मल टैक्स इनवॉइस है जिसके ऊपर ये सारी डिटेल नहीं है. डिपार्टमेंट वोंट बी कंसिडरिंग दैट एज अ वैलिड टैक्स इनवॉइस. मूविंग टू नेक्स्ट रूल, रूल 37 will be discussed by my friend. So friends, as we have already told you again and again on this presentation कि आपको 16 सेक्शन में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं and what points you have to be very careful about. As my friend told, you are eligible for the input tax credit only till 30th of November. 30th नवंबर के बाद आप कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं है. अगर आपने वो पीरियड लैप्स कर लिया पूरा फाइनेंशियल ईयर और उसके बाद भी 30 नवंबर तक आप अपने क्रेडिट को नहीं ले पाए हैं, तो देयर इज नो प्रोविजन एज ऑफ डेट इन द लॉ वेयर यू कैन गेट द क्रेडिट. But section 16 is supported by 3 rules, 36, 37 and 37A. 36 my friend has already been discussed कि invoice किसे कहते हैं. Invoice section 31 में वो क्या क्या ingredients invoice में वो आपसे चाहते हैं वो आपको explain कर दिया गया और एक performa invoice हमने आपके साथ share भी कर दिया. What is rule 37? Rule 37 again it is linked with section 16 subsection 2C with the proviso. ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर आपने 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करी अपनी सप्लायर को, मे बी आपको कोई फाइनेंशियल क्रंच हो, मे बी किसी रीज़न की वजह से पेमेंट नहीं कर पाए, तो आपका ITC डिनाई हो जाएगा. जो हमने यहाँ पर इसको स्पेसिफिकली यहाँ पे देखा था कि 180 डेज में अगर हम नहीं पे करते हैं. अब गवर्नमेंट हैज़ गिवन यू अ रेमेडी. Once you will make the payment, सपोज आपने किसी का बिल 1 अक्टूबर को गुड्स परचेज करे, आप 31 मार्च तक उसको पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, देन बाय 30th of September from 1st April you have to reverse that credit. आपको रिवर्स करना पड़ेगा क्रेडिट को विद इंटरेस्ट. एंड देन अगेन आपने उसका 30th सितंबर को पेमेंट कर दिया उसका 6 मंथ्स के बाद, यू आर एंटाइटल्ड टू रीअवेल द ITC. आपको वो ITC दोबारा मिल जाएगा, बट आपको सेल्फ असेस करके अपनी बुक्स को इसको सू मोटो रिवर्स करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट गवर्नमेंट इंटेंशन इज बाय इंट्रोड्यूसिंग रूल 37. और आपका वो इनपुट कभी भी वेस्ट नहीं होगा, डिनाई नहीं होगा. इंटरेस्ट एलिमेंट जरूर हिट करेगा इफ यू डोंट मेक पेमेंट विद इन 180 डेज. रूल 37A जो अभी न्यूली इंट्रोड्यूस है अक्टूबर 22 में, जिसमें जैसे कि अगेन हमने सेक्शन 16 में देखा था
कि supplier of the service have to file GSTR 1 not after 30th November from the end of the financial year. आपका जो supplier है, आप receiver है, आपके supplier ने किसी भी reason से GSTR 1 तो फाइल कर दिया, उसने अपनी सेल्स की फिगर तो रिपोर्ट कर दी, बट बाय एनी प्रॉब्लम ऑफ हिज वो 30th नवंबर तक रिटर्न को, अपने 3B रिटर्न को फाइल नहीं कर पाया। 3B रिटर्न क्या होता है? जिसमें वो अपने टैक्स को पे करता है, जो सेल्स वो शो करता है उसको 3B में फाइल करता है। अगर वो उसको 30th नवंबर तक नहीं फाइल कर पा रहा है, 30th सितंबर तक नहीं फाइल कर पा रहा है, तो आपको गवर्नमेंट ने 2 मंथ्स का ब्रैकेट दिया है 30th सितंबर के बाद 30th नवंबर तक कि आप उस आईटीसी को सुमोटो सेल्फ असेस करके रिवर्स कर दें। और अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं आएगी। बट टू मेक यू मोर इंश्योर अबाउट योर रिवर्सल, गवर्नमेंट हैव अगेन गिवन यू अ रेमेडी टू reclaim that ITC under this rule 37A whenever that tax will be deposited by the supplier। तो इसका मतलब ये है कि अगर GSTR 1 सप्लायर ने 30th नवंबर तक नहीं भरा तो वो उसके बाद टैक्स कितनी भी लेट जमा करा दे, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। GSTR 1 has to be filed. If 3B is delayed, then this remedy is available. Now my friend will tell how we will reverse this credit in the GSTR 3B return and how we will make sure the government also knows this fact that we have reversed this input and we are reclaiming it. So yes, now when we get to know by 30th of September after checking our portal, that portal by portal I mean checking your 2A, because the detail of the invoices that your supplier will furnish in his R1 will get reflected in your GSTR 2A. जैसे उन्होंने आपने कोई भी सेल करी, सेल की फिगर आपके सप्लायर ने R1 में रिपोर्ट करी, that will be highlighted in your GSTR 2A. तो it is an obligation on your part as a businessman to regularly check your GSTR 2A. Supposedly आपने GSTR 2A चेक करी, उसमें देखा आपने कि आपके सप्लायर ने डिटेल फर्निश नहीं की और 3B भी फाइल नहीं की। So you have a bracket of 2 months to reverse that credit. आप रिवर्स करेंगे, अब रिवर्स करके आप उसको पार्क करेंगे इन क्लॉज 4B2 ऑफ योर GSTR 3B, जिससे कि गवर्नमेंट को पता चल जाएगा that because your supplier has failed in filing his GSTR 3B, you are parking this credit in your GSTR, in your clause 4B2 of GSTR 3B to re-avail this later. So now friends, we are done with this video and we hope that you have understand section 16. We have tried to the best of our abilities to make you understand section 16 in simple terms. Now we'll be waiting for your queries and we'll be up next with another video in furtherance of this ITC series, that is section 17. So thank you. Thank you. And write to us if you have any queries.